qualified M.Com, LLB. Voice is not clear. Okay. Is it for everyone? Is it for everyone? Okay, hold on. Just hold on. Now it is clear? Okay. So somebody is answering it is clear and somebody is not yet clear. If it is clear to some people, then the people who are not getting voice clear, they adjust their microphones. Okay. Then we just start the things. First of all, I have a very simple introduction that I have qualified M.Com, MBA. कितने लोगों को क्लियर है? How many of you? Just one. Yes. Now it is clear. No, Now sir. it is clear. Are you getting the voice? Please tell me. At this time, are you getting the voice? No? So there is glitch in the voice. Somebody is saying yes. Somebody is saying no. Sir, it is a network issue. Yes, I can hear. तो ऐसा करिए कि अगर कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है, तो maybe the mic adjustment needed or some network issues. So please adjust. If somebody is able to hear, means there is no issue from my side. Okay. चलिए, तो हल्का सा जो वो इंट्रोडक्शन की बात है वो केवल हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग आगे सब्जेक्ट पर आगे बढ़ते हैं. What I am telling to you that I have qualified M.Com and then the MBA, LLB, and 3 times qualified NET in the commerce and 3 times in the management, and presently pursuing PhD. This is my academic background for you, on basis of which I am going to assist you in the subject of statistics for the purpose of accounting or statistical methods. Okay, and I have also qualified the certificate course in supply chain management from IIT Bombay. So if the sessions are going healthy with you and with us, then the things are delivered in a better manner from which you can avail some new things. तो अब हम लोग जल्दी से थोड़ी थोड़ी अपनी उस पे सब्जेक्ट की बात पर आने की कोशिश करते हैं. तो एकेडमिक बैकग्राउंड, अदर देन द एकेडमिक्स, I have represented Ranji Trophy cricket team
in 1993 from UP. Okay. Represented university cricket team 3 times, 3 years regularly in cricket. Worked as accountant in an government concern which is known as the UP State Handling Corporation. तो बेटा कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही है, तो वो एडजस्टमेंट नेटवर्क के कारण और आपके माइक के कारण होंगे, क्योंकि सब ऑफ माय स्टूडेंट आर सेइंग दे आर एबल टू हियर. Some students are saying that they are able to hear. This is the just simple type of my background which may be useful for you. अब हम लोग स्टैट्स की बात कर लेते हैं. तो किसी भी चीज को if we start to learn or read or study about anything, then what is it? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए from where it is get to be originated, उसकी शुरुआत कहाँ से, what is the evolution of it. इतना पता होगा then we are able to what is its advantages, what is its usefulness and how it is going to be operative and useful. तभी तो होगा ना. अगर हमें किसी से कोई काम करना है या कोई भी काम कराना है तो पहले तो पूरी उसकी वो तो पता होगी है क्या, इसके फायदे क्या है, तब तो आगे की बात होगी कि इसका करना क्या है और इसको चलाते कैसे. तो फर्स्ट or second sessions are just we have deal with them what is the statics, what is its origin, and then the growth process of this statistics in this world. Then its applied formulas and then its operative works. Okay. So what is the origin? Means where there is the people, the need of counting is started from the very beginning. It is need to count the things, and when the needs of counting is started, the statistics is started. Because afterwards, when we see the definitions of the statistics, we will find some definitions which are directly related with the numbers and the counts. जो भी काम हमें करना है इसकी कुछ गिनती, इसकी कुछ संख्या, ये पता होना चाहिए. ये पता होगा तो फिर हम आगे कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लोग ज्यादा है या इतने से लोग कम है, इतने सिमिलर है, इतने नॉन सिमिलर है. इसका बेस क्या है? अकाउंट्स. फिर शुरुआत से होता है, फिर उनके नेचर और यूजेस के हिसाब से उनके डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से यूज है. तो काफी पुराने में जब हम लोग जाएंगे और इसकी शुरुआत देखेंगे, द बुक which is written by the Moses, the book which is written by the Moses, the book of Numbers, the book of Numbers, in which the tribal census of the Israel was done to know the strength of the army. तब की बात हो रही है, before Christ. These all things like the BC, Moses की बात हो रही है. मतलब मूसा सबसे पहले इन्होंने इस पे काम किया कि लोगों की एक ट्राइबल सेंसस जो उस एरिया में ट्राइबल सेंसस थी उसको जानने की कोशिश की फॉर द पर्पस ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द आर्मी. ये सेना में कैसे भर्ती हो पाएंगे तो मुझे गिनती पता चले, कुछ संख्या पता चले. स्टैट्स का ऐसे कुछ स्टार्ट है. ओके. देन David do this type of census in 1018 BC. Clear? 1018 BC. David. ठीक है, इसको दाऊद बोलते हैं. And the Chinese government also done these type of censuses or collect this statistical data in the 1200 BC. Means now you can acknowledge the counting of the numbers and the use of the numbers is started before. अभी
हम लोग कहाँ आफ्टर क्राइस्ट में कितने साल बीत गए हैं? ये बिफोर क्राइस्ट की बातें हो रही हैं साथ। उस समय से नंबर ऑफ द काउंटिंग स्टार्ट। फिर समय समय पर कई सारे लोग इसको करते चले गए, इसके लोगों ने अपने अपने हिसाब से यूज किए। इट इज द यू कैन से द ओरिजिन और द स्टार्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द स्टैट्स। यहाँ से कुछ स्टैट्स का जो आइडिया है, द फ्लो ऑफ ऑफ आइडिया थॉट ऑफ द स्टैट्स बिगिन। और जैसे जैसे किसी भी चीज में फ्लो है, इट इज गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंगली विद द एनवायरमेंट प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। कोई भी एक फ्लो है तो वो जिस एनवायरमेंट पे टच में जाता है उस हिसाब से इट इज गोइंग टू बी चेंज। एक नदी अगर हिमालय से निकल रही है तो वहां उसका फ्लो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से दूसरा है, उसमें आवाज ज्यादा है क्योंकि एनवायरमेंट में पत्थर ज्यादा है, नीचे तो उछाल ज्यादा है तो लहर ज्यादा है, प्लेन तक आते आते उसका रवैया दूसरा है। It connects with the, it is a type of flow of the water, or it is going to be changed with the environment. Same with the flow of the thoughts, or flow of any subject, or flow of any study. जहां से वो चलता है, कोई भी स्टडी है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी थ्योरी, एज द टाइम पासेस इट चेंज अकॉर्डिंगली। वो अपने आप को बदलता चला जाता है, एडेप्टेशन करता है विद द एनवायरमेंट, और हर दिन एक नए रूप में आपको स्टार्ट एंड ओरिजिन इज बिफोर क्राइस्ट। और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि लोगों को केवल नंबर्स की काउंटिंग चाहिए होती थी। तो जैसे पहले थी कि हम ये ट्राइबल्स में कितने लोग बस रहे हैं मुझे पता नहीं, कि कल को अगर आर्मी के लिए मुझे यहाँ से अच्छे लोग चाहिए तो पता तो यहाँ पर कितने तक हम सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर ये आगे आपके लिए चलती चली जाती है। नाउ द मीनिंग, दिस वाज द स्टार्ट। कई जगह पर कई सारे लोग आए, इन्होंने सेंसस ऑफ पॉपुलेशन में यूएसए ने इसको इस्तेमाल किया 1790 में। देन जर्मनी used in its census the use of stats in 1833. The England started the use of stats in 1801. This was the flow of economics stats. Clear? ऐसे से हमारा ये फ्लो चलता चला गया। इंडिया में हमारे सेंसस कब स्टार्ट हुई? 1881। और फॉर्मली कब स्टार्ट हुई? बिल्कुल 1881 से स्टार्ट हुई सेंसस। सेंसस मीन्स द यूज ऑफ स्टार्स, द काउंट ऑफ द नंबर्स। संख्या से सांख्यिकी, हिंदी में इसका नाम है सांख्यिकी। तो संख्या रखेंगे ना, जब आप सेंसस कर रहे हैं तो पूरी संख्या रखेंगे, इतने आदमी है तो इतनी मेल है, इतने फीमेल है, इतने चाइल्ड है, इस एज ग्रुप में इतने लोग हैं, इस एज ग्रुप में इतने लोग हैं। देन द क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू स्टार्ट एज पर योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। और आपकी सेंसस आती है तो उसमें तो बहुत सारे क्राइटेरिया है कि कौन किस इनकम ग्रुप में है, अभी तो इनकम भी बता दीजिए, तो आपके घर में गाड़ी कितनी है ये भी बता दीजिए। अभी सेंसस वाले आने वाले होंगे 2021, तो देखिएगा उनका क्वेश्चन है कितना लंबा हो जाता है। बस बेसिकली दे आर creating the count of the numbers and what they are getting from you in the different manner as per the data they are using to bifurcate their data as per their need and needs। कि अब इसमें इस इनकम ग्रुप के लोग हम इतने यहीं से छांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस। लोग इस एरिया में कितने लोग हैं, इस एरिया में कितने लोग हैं, कई तरीके के यूजेज हैं। ठीक, कई तरीके के यूजेज। नाउ द मीनिंग ऑफ स्टैट्स, वेयर दिस वर्ड इज राइट फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये निकल के? This is from the word Latin status. Second, Italian word is statista. Latin word is status and Italian word is statista. Clear?
The origination of the word statistics is from Latin word status and the Italian word statista. Means at that time जब भी इसकी शुरुआत है जहाँ से ये word generate हुआ, it is generally used by the government for their uses. अब तो स्टेट्स का यूज काफी हद तक पर्सनल है, अपने अपने तरीके से। उस समय केवल गवर्नमेंट के हिसाब से अधिकतर यूज होते थे ये। दैट इज व्हाई इट्स मीन्स द पॉलिटिकल स्टेट और द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट और द साइंस ऑफ द किंग्स। क्योंकि सरकारों को इसकी जरूरत हुआ करती थी, आज भी है, पर आज सरकारों से ज्यादा दूसरों को भी स्टेट्स की जरूरत है। पर्सनल लेवल पर भी है, डिफरेंट बिजनेस लेवल्स पर भी है और डिफरेंट लेवल्स पर भी। और उस समय केवल गवर्नमेंट यूज कर रही थी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल स्टेट। स्टेटस मीन्स द पॉलिटिकल स्टेट और द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। सरकार का कुछ जो क्राफ्ट है या जरूरत है उसके हिसाब की ये साइंस है या साइंस ऑफ द किंग्स। अब फर्दर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। When the statistics used just for the government purpose or for the nature where the data is in very collective form and used for the national purpose or international purpose, then statistics used in the plural sense. क्योंकि statistics दोनों सेंस में, in the singular also and the plural also. When it is used, when the use of these data or the counts is for national purpose or international purposes, इस तरीके से करेक्ट होना। इट इज द प्लूरल क्योंकि इसमें उसमें कई सारी चीजें जाकर के एक साथ जुड़ जाएंगी उस डेटा के साथ। कुछ लोगों को अभी इशू ना हो। My voice is clear. Please response. Those people who are getting the voice clear. Just hold. Okay. Yes. Now I'm admin. Now I'm getting the voice. Yes, please confirm. Okay. Now you all are getting my voice clear. Okay. Uma and Muskan, Abhishek, all are saying yes. Means now we can proceed further. Okay. If some are getting it correctly, means issue is not on my end. चलिए अब हम लोग आगे तो हम लोग कहाँ पर थे कि स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है दैट वेरी इन द प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस।
when it is used for a large purposes or the national and international purposes, then it is going to be यूलर इन द सेंस सिंगुलर यूज ये कौन सी स्टैटिक्स की ब्रांच या नॉलेज होगी दैट इज इन द क्लासिकल व्यू और द मॉडर्न व्यू जब हम स्पेसिफिक पर्पस से स्टैट्स को यूज करें अगर देन इट इज सिंगुलर ये आगे हम लोग देखेंगे जब यूज आएगा तब आपको बता देंगे दिस इज कॉल्ड टू बी द सिंगुलर और द तो यहाँ तक की बात होगी और जब तक थ्योरी चलती रहेगी तो थोड़ी आपको बोरिंग हो सकती है लेकिन बात को हैंडल करना जरूरी है अदरवाइज हम लोग सीधे अगर उस पर चले जाएंगे तो ये बातें भी तो बहुत जरूरी है तो नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स द सम डेफिनेशन बहुत ज्यादा हम आप लोगों को थ्योरी को भी लेके दिए जा रहे हैं लेकिन थोड़ी सी तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए वो जरूरी है जो अधिकतर चलती है तो सम डेफिनेशन आर देयर जल्दी से लिख लेते हैं आप लोग लिखते चलेंगे इसको तो बहुत बड़े वन एमिनेंट टाइप ऑफ स्टैटिशियन वाज द बाउंडे प्लीज नोट डाउन अभी भी कोई एग्जाम या किसी तरीके के इंटरव्यू में स्टैट्स की कोई बात होगी तो इनका नाम बहुत पहले आएगा दैट इज द मिस्टर बाउंडे उनकी पहली सिंगल लाइन डेफिनेशन आप लिख सकते हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग ये एक सिंपल डेफिनेशन देन सेकेंड इनकी फर्दर एक डेफिनेशन आती है दैट स्टैटिस्टिक्स में राइटली प्लीज नोट डाउन इनको लिखेंगे जरूर आप statistics may rightly called the science of averages. Statistics may rightly be called the science of averages. फिर further एक और definition आती है that is statistics is the science of measurement statistics is the science of measurement of social organism regarded as regarded as regarded as a whole in all the Sir, your voice is not there. manifestations. तो ये तीन डेफिनेशंस की बात हम लोग की तो फर्स्ट वाज द साइंस इज द stat is the science of counting. So first of tell me what is the difference between the science and the art? Some categories are there. These are the subjects or these are the disciplines or the study area of the science. And these are the disciplines and the subjects and the area of the arts. Some type of criteria or some type of basis are there which on which it is going to be said this is the science side or this is the art side. जनरल डिफरेंस क्या हो सकता है आर्ट किसको बोले हम साइंस किसको बोले बार बार यहाँ पे बढ़ रहा है ना कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग द डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड आर्ट
Yes, please. Anybody will try? सर साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं और सर वो काफ़ी रिजिड होती है और वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, पर आर्ट टोटली प्रैक्टिकल्स पे बेस्ड होती है। ओके, साइंस में some प्रिंसिपल होते हैं, ये बात ठीक है। Means you have to stick with the some principles. If there are some principles, means some strict guidelines, some established standard to follow. Clear? If some standards are there or there is some mark line. Okay, science is the systematic body of knowledge, whereas art is application of human creativity. इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए मुझको। ये तो किताब की बात है, समझ में आने की बात से मुझको मतलब है। आगे से आगे जैसे हमारे सेशन बढ़ेंगे तो आप मेरा फोकस देखेंगे ऑन द अंडरस्टैंडेबिलिटी। कितना अच्छा समझ में आया, ये बात होती है सबसे। एंड एवरी पर्सन हैव सम कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन इटसेल्फ। वो अपने आप को एक्सप्लेन कर लेता है, तो यू कैन स्टेट योरसेल्फ इन योर वर्ड्स, इन योर वे। बट अंडरस्टैंडिंग इज द थिंग व्हिच इज डेवलप्ड इन द क्लास और डेवलप्ड बाय द डिस्कशन। इसको बढ़ाना है हमको आपको नहीं, क्लास की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े रिगार्डिंग एनी पॉइंट, रिगार्डिंग एनी इशू ऑन व्हिच वी आर डिस्कसिंग। इट इज द आउटमोस्ट ऑब्जेक्टिव। तो साइंस एक आपने बोला कि एक प्रिंसिपल्स पर गाइडेड है, प्रिंसिपल पर गाइडेड है मतलब कुछ मार्कर, कुछ लाइन डिसाइडेड है। अगर वो डिसाइडेड है तो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी रीच अगर उस मार्कअप या उस लाइन तक जा रही है तो इट शुड बी वेरीफाइड, उसकी वेरिफिकेशन भी हो सके। क्लियर? उसकी वेरिफिकेशन भी हो सके। ओके, साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। या आर्ट्स के सब्जेक्ट में एक्वायरिंग नॉलेज नहीं है? तो ये डिफरेंस जब जिस दिन हमको करना आ जाएगा उसी दिन हमें साइंस और आर्ट का डिफरेंस पता चलेगा कि अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट आप पढ़े तो यू आर नॉट एक्वायरिंग द नॉलेज। इफ यू आर रीडिंग द हिस्ट्री व्हिच इज नॉट इन द साइंस then you are not acquiring the knowledge. Acquiring the knowledge. If you are reading the geography, you are acquiring the knowledge regarding any type of area, regarding any type of demography, regarding any type of custom followed in the area, regarding any type of festival, and regarding any type of river, weather, whatever. Knowledge तो बढ़ रही है। So acquiring knowledge is not, I think, a criteria to differentiate between the science and the art. Science is based on practical knowledge, sir. Okay, ये थोड़ा नियर पहुंचते हैं हम लोग। अब थोड़ा नियर पहुंच रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज प्रैक्टिकल, व्हाट इज एप्लीकेबल। जो पहले वर्ड जो मुझे लिखा दिखाई दे रहा है, मनप्रीत का स्टेटमेंट, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वेयर एज द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन क्रिएटिविटी। तो एप्लीकेशन और प्रैक्टिकेबिलिटी में क्या फर्क आ रहा है? प्रैक्टिकल तो कैसे हम लोग छोड़े? जो पहली बात है, सम टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स आर देयर। कुछ भी आप कभी भी कहीं से कुछ नहीं करेंगे, सम टाइप ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स आर देयर एंड यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, देन इट मे बी वेरीफाइएबल। तब तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो ना। अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं, प्रिंसिपल्स आर द स्टैंडर्ड्स, आप बोलोगे कि ये चीज मैं करता हूँ, दिस इज माय प्रिंसिपल। इन द सेकंड वे यू आर सेइंग आई हैव एस्टैब्लिश्ड दिस स्टैंडर्ड। तब ये कैसे पता चलेगा कि किस दिन आप अपने प्रिंसिपल से दूर हो गए? तो सम एक्टिविटी यू हैव डन व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, then you can say you have not done this. So what is this? This is the verifiability regarding any event. तो वेरीफाई करेगी साइंस आपको कि आप ऐसा अगर कर रहे हैं, yes based on the formulas or based on the principles whatever। तो ये जितनी भी बातें हैं
तो जब आप इनको कर रहे हो तो साइंस मीन्स यू आर डिपेंडिंग द थिंग्स एंड वेरीफाई द थिंग्स as per your standards. That is why the stats is the art as well as science. ये आर्ट कहां पर है? when we are going to apply it. प्लीज, ये आर्ट कहां पर है? when you are going to apply it. जब आप उसको अप्लाई करें वहां पर वो आर्ट, subject of practice. Okay, when you are practicing and when you are applying these statistics, then it is the art. But when you are drawing some inferences on the basis of the data which you have collected in the stat, then it is a science. Because drawing such inferences, you are laying some principles. आज की क्लास में इतनी तो बात समझ आए, वो तो बिल्कुल बेकार की बातें शुरू की, केवल थ्योरी की है कि यहाँ से शुरू हुई, वहां से शुरू हुई, 2000 क्राइस्ट के पहले शुरू हुई, इन्होंने इकट्ठा किया, इसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, ये सब बातें भी बेकार है। तो समझ में आना तो शुरू हो कि आर्ट और साइंस क्या है। जब ये जो डेटा मुझे स्टैट से मिला और इनसे हम कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ करें, और जो इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक सिंपल टर्म्स में हम ले लें कि जो 10 लोग हैं इनके बीच में एक एवरेज इंटेलिजेंसिया क्या है, दैट इज डिपेंड्स ऑन समथिंग। हमने उनके आईक्यू को कुछ नंबर्स दिए, उनके नंबर्स का एक एवरेज लिया, तो उस वो एवरेज मुझे अगर 6 मिल जाए तो मैं बोलूँ कि इनके सबके बीच में मोर और लाइक 6 का एक आईक्यू है, तो किसी का 7 भी हो सकता है, तो किसी का 5 भी हो सकता है, बट सम स्टैंडर्ड आई हैव एस्टैब्लिश्ड, कुछ स्टैंडर्ड हमने एस्टैब्लिश की। अगर कुछ स्टैंडर्ड हमने एस्टैब्लिश की मींस देयर आर सम प्रिंसिपल्स, उनके आधार पे तो हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं। कोई अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं, अगर हमने कोई कोरिलेशन किया, हालांकि वो आगे की बातें हैं कि थोड़ी बहुत आपकी सुनी होंगी, इंटर में कुछ ना कुछ तो आपने इनको देखा ही होगा। Now I am dragging your intention towards why it is science. It is science because if we are studying the thing, there is a dependability of one variable is on the other variable. अगर हम इस चीज का एनालिसिस करें कि on the basis of advertisement is my sale is increasing, this is the principle I have put it on. ये प्रिंसिपल डाला नाम, और इसके आधार पर जब डेटा पे काम करके अगर हमने कुछ वर्किंग निकाली अपनी, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई कैन से यस देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट एंड द सेल्स, और नो देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट और सेल। ये कैसे आप कर सकते हैं? ये ऐसे ही तो करेंगे ऑन द बेसिस ये स्टैंडर्ड आप डाल लो इनके बीच में कोरिलेशन है, और इसको हम कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। एक दोनों डेटा का कंपेयर करके कोरिलेशन निकाल के फिर इनका कोफिशिएंट निकालना है, तो हम जान पा रहे हैं कि हाँ इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो उसकी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है या उसकी डिग्री कितनी है। दैट इज व्हाई यू कैन से इट इज अ साइंस। व्हेन वी टेस्ट दिस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड और टेस्टिंग टूल्स, आप सबने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी, उसमें तो आप यही करते हैं ना कि ये सॉल्ट है, इसमें ये वाला अगर आप एसिड मिला देंगे देन यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, और ऐसी गैस निकल जाएगी और ये बच जाएगा, इसका रंग नीला हो जाएगा। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है इसका कि आप इसमें ये मिलाओगे तो ये बन जाएगा, और आपने किया तो साइंस का काम किया ना, आपने प्रिंसिपल को फॉलो किया ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बोला जाएगा ये आपने ठीक से नहीं मिलाया, या आपने कम मिलाया, ज्यादा मिलाया। तो जब हम स्टैट्स में कलेक्टेड डेटा को यूज करते हैं on the basis of some testing criterias and creating some inferences on basis of such data, means we are able to say that statistics is a science. कुछ बात समझ आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्स। कुछ बात समझ आ रही है? यस प्लीज रिस्पॉन्स। Yes, sir. ओके, तो अगर हम ये ले लें कि ये पूरी क्लास है आपकी ऑन बेसिस ऑफ द माय ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सम टेस्ट, मैं ये बोल दूं कि इस क्लास में एवरेज 60% के बच्चे होंगे, तो इसके लिए हमने कुछ किया है ना आपके साथ, कुछ अटेंडेंस देखी होगी, कुछ आपके रिस्पॉन्सेस क्लास में देखे होंगे,
कुछ आपके पीरियोडिकल्स या टेस्ट या कुछ ऐसा लिया होगा, ऑन बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग द परफॉर्मेंस लेवल इज अप टू द 60%। किसी का 80 भी हो सकता है तो किसी का 45 भी हो सकता है, पर ऑन एवरेज। क्लियर? दैट इज व्हाई इट इज अ साइंस। उन्होंने पहले बोला कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, की काउंटिंग में आपके लिए साइंस है। आगे और यूजेस के हिसाब से कैसे साइंस बन गई ये भी मैंने डिस्कस आपके साथ कर लिया। फिर अगली डेफिनेशन बाउले की क्या थी आपके लिए, दैट इज द साइंस ऑफ एवरेजेस। तो एवरेज की बात हमने आपसे करी थी, क्योंकि एवरेज भी है ये भी आपके लिए एक प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं ऑन द टोटलिटी। हर एक को आप अलग अलग जानो, हर एक का लेवल अलग अलग जानो, इट इज डिफिकल्ट। और एक सारे लोगों के ऊपर आपने एक एवरेज लगा लिया तो वो क्या हो गया आपके लिए कि आप जो है वो सारे वैसे ही होंगे। ठीक, जो साइंस ऑफ एवरेज कि कैसे हम एवरेज को निकालें जिससे ये पता चल जाए कि ये जो डेटा है ये मोर और लेस एक जैसा होगा। जैसे एक आम के ठेले पर हम पहुंचे और चार कोनों से पांच अलग अलग आम निकालने, एक बीच से निकालने और रस्सा में पीछे से निकालने। अब बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम है वो उनके अपने एंड से है, वो अपना माइक एडजस्ट करें, अदरवाइज दे हैव टू एडजस्ट विद देमसेल्फ। ठीक, तो जाने के लिए कोई भी कारण बताया जा सकता है और बनता है। डोंट गिव मी द रीजंस टू गिव, आपको लीव करना है आप लीव कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एवरेज के हिसाब से ये क्यों सही है, क्योंकि एवरेज एप्लीकेबल हो जाता है सबके ऊपर। एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर एक आम के ठेले से हम लोग चार कोनों से पांच कोनों से आम को उठाएं, कुछ आगे से कुछ पीछे से दाएं बाएं से चार तरफ से हमने लिए और चारों और पांचों अगर अच्छे निकल जाते हैं देन वी कैन से वी हैव टेकन द एवरेज। एक एवरेज तो लिया हमने, यूनिट टर्म्स में नहीं लिया बट एक सैंपल में एक एवरेज लेने की कोशिश तो की। तो साइंस ऑफ एवरेजेस है। ठीक? ये कुछ डेफिनेशंस चलती हैं, एक दो डेफिनेशंस की डिस्कस और कर लेते हैं आज की क्लास में। इसके बाद फिर बातें आगे के लिए छोड़ देंगे हम लोग। किंडाल, KNDALL, मिस्टर किंडाल के का डेफिनेशन है, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से लिख लें हम लोग। Statistics is the branch of scientific method which deal with the properties of population of natural phenomena। सर रिपीट प्लीज। थोड़ा देता हूँ एक बार और। Statistics is the branch of scientific method which deals with the data obtained by counting or measuring the properties of population or natural phenomena। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन में मैंने बताया है कि एनी फ्लो ऑफ थॉट और एनी फ्लो एनवायरनमेंट और यूज के हिसाब से मोर मीनिंगफुल और मोर डायमेंशनल होता चला जाता है। तो ये डेफिनेशन आप देखिए कि और ज्यादा साइंटिफिक के नजदीक आपको लेके जा रही है, और ज्यादा साइंटिफिक के नजदीक लेके जा रही है। ठीक है, क्या बोलिए कि जो भी आपने डेटा ऑब्टेन किया उनकी काउंटिंग और मेजरिंग और सब करने के बाद व्हाट एवर योर पॉपुलेशन इज, उसकी एनालिसिस, उसकी प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट या किसी घटना का मेजरमेंट आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द क्लियर? क्लियर?
नाउ नेक्स्ट छोटी सी दो लाइन बॉडिंगटन, मिस्टर बॉडिंगटन, बॉडिंगटन। Now the Mr. Boddington की दो लाइन की एक छोटी सी definition है the science. What is the statistics? He says that statistics is the science of estimate and probabilities. Mr. Boddington says that statistics is the science of estimates and probabilities. कि जितने भी आपने डेटा इकट्ठा किए हुए हैं उनके ऊपर कुछ एस्टिमेट्स आप लगा रहे हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं. That is why he said this is the science of estimates and probabilities. कुछ डेफिनेशंस की आज बात हो रही है तो आप एक दो और लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अच्छी हैं एग्जाम के पर्पज से. तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू किंग, किंग देखिए साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स is the method of judging collective, natural or social phenomena from the result obtained by the analysis of an enumeration or collection of estimates. ये जो डेफिनेशन है ये मॉडर्न टाइम्स की है. It provides some new type of characteristics. इसने characteristics of the science of the stats को और अच्छा किया. और ये दोनों साइड पर एप्लीकेबल है, द नेचुरल एंड द सोशल एक्टिविटीज आल्सो. पढ़ के देख लीजिए इसको. The stat is the method of judging collective, natural or social phenomena from the result obtained by the analysis of an enumeration and collection of estimates. जो भी आपके estimates हैं उनके हिसाब से जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो नेचुरल और सोशल फिनोमिना का है तो उस पर एनालिसिस करके आप कुछ काम कर पा रहे हैं, ये बोलिए. और एग्रीगेट्स की बात कर रही है, नॉट ऑफ इंडिविजुअल, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एंड सोशल. तो जो भी ये डेफिनेशन से जो बातें आ रही है इनमें काम करना भी आप सीख जाइए. एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एंड सोशल मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट्स. वो इकट्ठा करके सभी बात कर रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल. ठीक. अगली Croxton and Cowden. Croxton and Cowden. Statistics may be defined. Statistics may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Which one I have to repeat, Yashi? Of Croxton and Cowden or of King? सर किंग. तो पहले बेटा क्रॉक्स्टन एंड काउडेन वाली ने दोबारा ले लिया, उसमें सारे लोग साथ में चलेंगे, फिर बाद में किंग बनेंगे. तो क्रॉक्स्टन एंड काउडेन statistics may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Now, on the demand of the definition को repeat कर देता हूँ मैं.
Science of statistics is the method of speaker बेटा बंद कर बेटा. Science of statistics is the method of judging collective, natural or social phenomena from the result obtained by the analysis of and enumeration or collection of estimates. यशी बेटा स्पीकर बंद कर लो. यशी ओके. तो ये जो आपकी डेफिनेशंस थी ये हो गई. और जल्दी से हम लोग, क्योंकि आज तो ये डेफिनेशंस और इन्हीं पर बात हो रही है, केवल एक आध और लिख लेते हैं बस, फिर बंद करते हैं. यूले, YULE, मिस्टर यूले. Statistical methods are methods especially adopted to the elucidation of quantitative data affected by multiplicity of causes. I again repeat. The statistician is Mr. Yule, YULE. Statistical methods are methods especially adopted to the elucidation of quantitative data affected by multiplicity of causes. तो ये कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस, ढेर सारी डेफिनेशंस हैं और उन पे ढेर सारी बातें हो सकती हैं. तो ये कुछ डेफिनेशंस केवल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं की. तो कोशिश करिएगा आप कि अब घर जा करके इन डेफिनेशंस को देखिएगा, कितना इनसाइट आप क्रिएट कर पा रहे हैं इस पे, और इस पर कोई क्वेरी आ रही है तो उसको आप जरूर पूछेंगे. इसके बाद हम लोग अगले उस पर कल की क्लास में जाएंगे कि व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट आर द डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स का स्कोप कहाँ तक है, स्टैटिस्टिक्स के डिवीजन क्या हो सकते हैं, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, फिर मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी बातें करके और स्टैट्स की बात को फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे फर्दर इसकी काउंटिंग पर और इसकी दूसरी चीजें. लेकिन अभी की एक तो क्लास आपके लिए इसको ये जानना जरूरी कि ये है क्या, आई कहाँ से. फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेफिनेशंस में डिस्कस हुई है, इनसे रिलेटेड ये आप देखिए, और कोई क्वेरी जनरेट हो रही है तो वो आप पूछ सकते हैं. अभी कुछ क्वेरी जनरेट हो रही है तो अभी पूछ सकते प्लीज. Anybody have any query? No. Okay. तो मेरे ख्याल से इतनी सारी डेफिनेशन बहुत है, इससे ज़्यादा आपको ना दिखाई जाए, नहीं कहेंगे यार ये पहले भी सर मिली हमारे ढेर सारी डेफिनेशन भी दिखा डाली. क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट की शुरुआत है तो ये बातें थोड़ी सी जरूरी है, इसके बाद फिर इतनी जरूरत इनकी पड़ेगी नहीं. ठीक है. Now if you have anything extra you have to tell me. आप फ्री है वो मुझे बता सकते हैं. रिगार्डिंग द मोड ऑफ स्टडी, इसके लिए 1 2 दिन 3 दिन रुक जाइए, 2 3 दिन में और चीजें सामने आ जाएंगी. फिर अगर कुछ आपको लगता है तो आप बता सकते हैं. रिगार्डिंग द मोड ऑफ स्टडी, रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, कुछ भी अगर आपको लगता है कि बेटर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है हम दोनों के द्वारा मिलकर इस क्लास, तो आप डिस्कस कर सकते हैं.
कुछ और भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नाउ द स्टडी सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। अब एक रिक्वेस्ट है मेरी, पता नहीं बाकी के साथ कैसा है, आप टाइम पर ज्वाइन करिए, नॉट बिफोर द टाइम। करेक्ट? पहला दिन है, तो मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो प्लीज इस बात का बुरा मत मानिएगा। मैंने आपको बेटा अपना सारा प्रोफाइल बताया ना, उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस भी शामिल है, तो पढ़ाई वाली भी सारी चीजें मैंने बता दी। हाँ, बीच में एक बात बताने में मैं आपको भूल गया कि 1 से 1.5 साल तक आई हैव वर्कड एज अ स्टोर मैनेजर इन अंडर द रिलायंस रिटेल। तो प्राइवेट में और बड़ी एमएनसीज में कैसे काम होता है उसका भी बहुत एक्सपीरियंस मेरे पास थोड़ा बहुत तो है। ऑन बेसिस ऑफ ऑल दैट आई एम सेइंग टू डेवलप द डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन आ जाएगा तो कहीं किसी चीज की कमी नहीं है, जॉब की, नौकरी की, किसी चीज की। दिक्कत वहाँ आती है कि जहाँ हमारे पास नॉलेज तो होती है इन द टर्म्स ऑफ डिग्री, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन we are lacking because we are the humans, and humans need some special type of skills to perform, not only the knowledge, that are the behavioral skills. तो वो जब हम आप किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो वहीं से डेवलप शुरू होना शुरू हो जाता है हर लेवल। ठीक, तो एक मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो आपका टाइम हो उस समय ही जाए, नॉट बिफोर। 10-15 मिनट पहले से आके मत। 11:15 का टाइम है, 11:13, 11:14 से आप रीच करने लगे, 11:15, 11:16 तक आपकी एंट्री। जिस दिन मुझे ही कुछ अगर 1-2 मिनट लेट हो जाए तो बात अलग, पढ़ने में हम दोनों मिलकर किसी भी चीज को कितना अच्छा बना सकते हैं। आपके एंड पे आपका काम है, मेरे एंड पे। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। कुछ क्वेरी हो तो बेटा अभी भी आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरी फर्दर हम लोग अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे, विचार अदर देन द स्टडीज एंड मोर वैल्यूएबल, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज यू ऑल आर इन द न्यू एज। जहाँ आपकी एक्सपर्टीज और तेजी है वहाँ हम लोगों की नहीं हो सकती। दैट डिपेंड्स ऑन द जनरेशन गैप। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, ऐसी बात नहीं। तो प्लीज शेयर योर व्यूज। ठीक, नो क्वेरी, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। Thank you. मिलते हैं। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।